So now here we are going to discuss when the limits is given from minus L to L, right? Always the first thing you have to click in your mind is like first check for even and odd functions, right? So यहाँ पे मैंने एक heading यहाँ पे मैं point कर देता हूँ. Whenever like you have limits in minus L to L, always think about even odd function. Even odd function. Okay, they will not give into the question कि हाँ भाई ये बताओ क्या है क्या नहीं है. But you have to think about it. Limit अगर ऐसा दिया हुआ है, well and good, nothing said, go for 0 to 2L. Limit अगर ऐसा दिया है, and they have asked half range sine or cosine series, go for this way. If they have given the limits from minus L to L or minus pi to pi, always think about it. Even and odd function. First check for even and odd. And I told you 99.9% time even ही होता है. इस बार का जो पेपर में आया था, previously also they have asked 2-3 questions similar. So some important questions are there. Even function and odd function. So first we need to understand what is even function and what is odd function. So just look at here. I already told you कि like this is very 0.01% time. Odd function नहीं आता. Only one question is there in Kumbhuskar sine का. So that is not at all our point of interest. We'll just neglect it. ये गया हवा में. Now the point is even. Even function कब होता है? Whenever any function f of x is given. Let's say f of x is equal to x square. Let's say as example. Now the important part we have to do is we have to take x की जगह पे minus x. So we will have to find f of minus x. So f of minus x is equal to, put x is equal to minus x here. Square is there, put a square. So that's nothing but minus का square plus हो जाएगा. This is also x square and this is nothing but equal to f of x only. So whenever the condition, that means f of minus x becomes f of x, then this function is nothing but even function, right? So that's the very important condition that we must need to remember till the exam at test. So that's very important. Now I'll show you some example जो कि exam में repeatedly आता रहता है and that is 100% fixed जो अभी भी paper में आया था. And this is totally like my observation. So just यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ example. Example number 1. X square even function होता है, ठीक है? Any constant function, any constant like f of x is equal to 9. There is no x terms. If we take f of minus x, तो भी क्या निकलने वाला है? 9 ही होगा. If we take x square, x5, nothing changed because x term is not there, ना? Right side constant है. So it is always constant. So we can say f of minus x is equal to f of x in the case of constant function 9. So it's a even function. So constant हो गया. Then उसके बाद you can find cos x, cos of minus theta is cos theta only. So that is also comes under the even function. So these are the three basics I can say even function. Apart from that जो exam में आता है, that is very important. So इस बार का question I am giving you f of x is equal to 1 plus 2x by pi in limit minus pi less than equal to 0, less than equal to x less than equal to 0, and the another is like 1 minus 2x by pi when it is 0 less than equal to x less than equal to pi. So this is the condition which is given in the problem. That means expand or write the Fourier series for this function in minus 2 to 2 they can ask, or they can ask minus pi to pi. Why they ask minus pi to pi? Because limit is given as a pi. So ये minus 2 से 2 यहाँ पे तो नहीं आएगा. So we'll remove this part. So this question has been asked like this only in minus pi to pi. So whenever you will put the f of minus x, this is very important question, and in the same fashion, पहचानना भी बहुत आसान है. The first thing you have to look into the question is f of x में ना x का term रहेगा, एक बार plus के साथ रहेगा, दूसरी बार जो x का term रहेगा वो minus के साथ रहेगा. Okay, so whenever you take the f of minus x, I'll show you f of minus x अगर हमने लिया, so यहाँ पे क्या हो जाएगा? Minus हो जाएगा. So 1 minus 2x by pi. लिमिट में भी हम लोग माइनस साइन इंसर्ट करेंगे. सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ये तो हो जाएगा हमारा पाई. और यहाँ पे क्या कंडीशन क्या हो जाएगा? जब भी इनइक्वालिटी साइन में माइनस हम लोग इंसर्ट करते हैं ना, सो दैट इनइक्वालिटी साइन बिकम्स रिवर्स. दैट मींस अगर 2 में माइनस साइन ऐड करेंगे क्या होगा? -2.
छोटा हो गया, अगर -2 है तो अगर नंबर में माइनस और लगाया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो द सेम थिंग हियर, लिमिट भी चेंज होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस greater than equal to 0। नाउ अभी इसमें माइनस हम लोगों को करना है, सो दिस इज 1 + 2x by pi एंड द लिमिट विल बी 0। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या ये साइन चेंज हो जाएगा, x greater than equal to -5। so if you look at this problem, the function and the limit here and here, just look at the function, 1 plus वाला टर्म जो था x वाला plus 2x by pi, लिमिट क्या था -5 to 0, 1 plus 2x by pi, -pi से बड़ा और 0 से छोटा। so range and function will be same, right, just to order change हो गया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। so we can say this is nothing but equal to f of x only and hence this is even function। so that is very important point जो अभी मैंने यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंगली बताया। ये तो हम लोगों ने सिर्फ अभी तक आइडेंटिफाई किया है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कौन सा फॉर्मूला कौन से कैटेगरी का है, वेदर इट इज लाइक जनरल कैटेगरी, वेदर इट इज हाफ रेंज साइन कोसाइन, ये तो पहचानने में दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में देगा वो। एंड व्हेन वी कैन हैव द इवन ऑड फंक्शन, ये हम लोगों ने अभी तक पहचानने में लिखा है। नाउ आई टेल यू वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इवन ऑड फंक्शन। आई एम जस्ट ओके, I'll remove everything। so ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। now for even function, one very important property is even function is symmetrical about y-axis। even function is सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। पढ़ा होगा 12th में हम लोगों ने, राइट, होपफुली पढ़ा होगा। तो 12th में क्या होता है, कोई भी फंक्शन है बोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है भाई, हम लोग एक बना लेते हैं कोई भी फंक्शन जनरली, लाइक ऐसा करके हम लोगों ने कुछ बनाया। अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो सिमेट्रिकल जो भी एक्सिस और जो भी लाइन के सिमेट्रिकल होता है ना, सो दैट एक्सिस और लाइन विल एक्ट एज अ मिरर। अभी आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, क्या दिखता है, वैसा ही दिखता है, उतने ही डिस्टेंस पे दिखता है। सो द सेम थिंग हियर, ये जो फंक्शन अभी हमने ड्रॉ करा है जो भी है व्हाटएवर लाइक f of x, सो राइट साइड ये मिरर हो गया, राइट, दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर। तो ये जैसा उधर दिखेगा वैसा ही यहाँ पे भी दिखेगा। सो अगर ये फंक्शन हमारा यहाँ पे राइट साइड प्लस l है, दैट मींस लिमिट ये 0 से लेके l तक है, तो ये कहाँ तक होगा, दिस पॉइंट इज -l। So this is -l to l, right? यही वो लिमिट दिया होता है क्वेश्चंस में, -l to l, right? So अभी क्या हमने देखा, साइन जो भी फंक्शन है उसका लिमिट दिया हुआ है -l to l। So ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये होगा। So इसके अंडर का जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, एरिया अंडर दिस कर्व, राइट, वो भी सेम ही होगा। If it is a, then we can also write this is also a, right? So ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने 12th में पढ़ना है, राइट, दैट -l to l तक अगर हमें ये फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमें लिखना है, सो वी कैन राइट इट द ट्वाइस फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ का एरिया निकाल के उसको डबल कर दिया, सो 0 to l, लिमिट विल बी 0 to l एंड दैट फंक्शन इनटू dx। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे व्हेन आई विल स्टार्ट विद द कोएफिशिएंट कैलकुलेशन a नॉट an and bn। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। I'll just mark it like this। ये बोल ना, अब हम लोगों ने देख लिया लिमिट के आधार पे कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे ये कौन सा फोरियर सीरीज किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी अभी तक हम लोगों ने पहचाना है, राइट। नाउ उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने, मैंने कभी लिखा 0 to 2l, फिर लिखा 0 to l, फिर लिखा उसको 0 to pi। So what is that? I told you कि like put l is equal to pi. That is okay, fine, because we know sine and cosine functions. This is sine function and this is cosine function. We all know 0 to 2 pi, right? This is the time period for sine and cosine functions. The period is 2 pi. So because we can represent each and every function in terms of sine and cosine, so हम लोगों ने उसको 0 से 2 pi, that means pi के terms में उसको generalize कर लिया, and that is a important result।
ये यूज में आएगा. सो हम लोगों ने इसको पाई के टर्म्स में लिखा है. सो नाउ इफ वी पुट L इज इक्वल टू पाई, क्या होगा देखो, पुट L इज इक्वल्स टू पाई इन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहाँ पे, जो हम लोगों का एक टर्म था n पाई x by l, ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू पाई अगर पुट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट n पाई बाई पाई इंटू एक्स एंड दिस बिकम्स nx बिकॉज ये पाई कट गया. सो नाउ इतना बड़ा जो टर्म था डिनोमिनेटर वाला वो खत्म होके सिर्फ बच गया nx. सो नाउ दैट फॉर्मूला विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू f of x is equals to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx. अभी ये फॉर्मूला भी आपको कभी कभी दिख जाएगा कुंभुजकर में, राइट. सो इसको उन्होंने कुछ अलग बोला है. अभी ये क्या अलग फॉर्मूला है क्या कुछ, L इज इक्वल टू पाई पुट करो, हमारा आंसर आ गया, राइट. सो ये एक फॉर्मूला हमारा आ गया वहां से. दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस, राइट. दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन L इज इक्वल टू पाई. ठीक, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है. नाउ अब ये मैंने कैटेगराइज आपको करके बता दिया, इवन ऑड फंक्शन बता दिया, ये यूज करेंगे अभी हम लोग कोफिशिएंट कैलकुलेशन में, ये बता दिया. नाउ स्पेशल केस L इज इक्वल टू पाई पे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया, जो नीचे पाई बाय L था वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट विद द कोफिशिएंट कैलकुलेशन, राइट. So now step number 2 is coefficients calculation. So this is actually a part of signal system जो हम लोगों को telecommunication में पढ़ाया जाता है. All other branches I don't think so will be having this particular subject, signal system. But signal system is very important, particular I can say very important theory or very important concept to analyze this Fourier series, because उसके बिना हम लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. And I think only a telecommunication guy can understand जो मैं अभी बताने वाला हूँ. But just have a this small thing in your mind, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, because that will give you the proper understanding, वो समझने में आसान हो. Now जो कोफिशिएंट होता है ना a naught an bn, it can be represented like this. अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों ने उसको लिखा, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन लाइक जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. सो a naught जो है हमारा डीसी पावर था, सो a naught is like this, it's completely a naught DC signal. When we are having b the an and bn, so उसमें क्या होता है, n is equal to 1, this is an, right, n is equal to some other value like this is I can say bn. But hold a small thing in your mind, कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज डबल साइडेड, नॉट अ सिंगल साइडेड. सो ये जो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस नथिंग रिप्रेजेंट्स द पावर कंटेंट ऑफ दैट सिग्नल एट दैट पॉइंट. सो वो चीज यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे ना n is equal to 1 2, तो ये जो पार्ट होता है दिस इज ओनली अ हाफ पार्ट, राइट. ये चीज दिमाग में रखो, ये n is equal to -1 पे भी ये अवेलेबल है, सेम हाइट का अवेलेबल है an by 2. So this is not the complete n, that's the half part only, half part in right side, half part in left side. But the Fourier series which we are writing is from 0 से लेके infinity तक लिखते हैं हम लोग. तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, only we are considering this half part. a naught का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, a naught is like complete total DC value, इधर उधर नहीं, 0 पे, that's a final. But यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, this is an by 2, this is bn by 2 and so on, ठीक है, वो चीज ऐसा होता है. So now look at here how we can calculate the coefficient, क्या changes आएंगे a naught calculation and an calculation, that's very important. Let's look at here coefficient calculation. The first is like a naught, first is calculation of a naught. I'll explain you only one formula, with the help of that we can find all the answers even till complex Fourier series. So don't worry about that. In book, I think 16 to 19 formulas are there, different formula for different cases. Not required, not at all required.
because as you are just came from this second semester, so second semester integration and all बहुत है, it's very rigorous, I can understand, but उसके बाद आके इतने सारे varieties and all, इतनी सारी complexity रहती है 4 year में कि will get stuck at some point and exam time पे तो समझ लो गए. So that's the easiest way जो मैंने टेबल बनाया था, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है. आफ्टर दैट विल सिंपली अप्लाई द थियरी. एक फॉर्मूला, सिर्फ 1 2 3 फॉर्मूला ये, और एक जो स्टार्टिंग का हमारा f of x का था वो. दैट 4 फॉर्मूला ओनली वी हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट, खत्म. बिना किसी थियरी पीछे वाला जाना है ना, वी ओनली हैव टू थिंक अबाउट दिस 4 फॉर्मूलाज. आफ्टर दैट एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ a naught. So a naught is nothing but what is this? मैंने बोला था स्टार्टिंग में लिखा था DC वैल्यू, अगर ध्यान हो तो. So this n is equal to 0 पे ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है? DC वैल्यू. एंड DC वैल्यू को ही क्या बोलते हैं अगर ध्यान हो तो? That is called एवरेज वैल्यू. अगर किसी ने पढ़ा हो बचपन में, DC वैल्यू को ऐसे डिनोट करते हैं, बिकॉज DC का क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ही तो होता है, लाइक 2 वोल्ट 5 वोल्ट, दैट्स अ कांस्टेंट लाइन DC. सो एंड एवरेज भी क्या होता है? थोड़ा सा अगर किसी का मार्क्स है, क्या मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में 50 60 70 80, क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. तो एक जो आंसर आता है वो क्या आता है? 55 65, दैट्स इट. एक ही वैल्यू आएगा, एवरेज. दैट्स द एवरेज वैल्यू. सो वी नीड टू कैलकुलेट हियर द एवरेज ऑफ दैट सिग्नल. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिलेट दिस मैथमेटिक्स फ्रॉम द थियरी. अदरवाइज रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में गलत ही होने वाला है. ये 100% लिखा हुआ है. सो जस्ट लुक एट हियर, वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ कंटीन्यूअस सिग्नल f of x. कीप इन माइंड, एवरेज ऑफ अ कंटीन्यूअस सिग्नल f of x. कंटीन्यूअस सिग्नल में क्या होता है? समेशन साइन तो नहीं आएगा, इंटीग्रेशन आएगा. एग्जैक्टली. सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सिग्नल f of x. लुक हाउ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनटू द फॉर्मूला. So f of x दिया हुआ है, we have to take the sum of all the functions and divide by total, यहाँ से जहाँ तक मुझे लेना है वो लिमिट. So that summation is nothing but from this limit to this limit. जो भी लिमिट तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में. For the first case, general case I am explaining. So 0 to 2l की बात में कर रहा हूँ, right? The limit is 0 to 2l की बात में कर रहा हूँ. So from f of x is like integration from 0 to 2l. Okay, I have written here 0 to 2l. And then we have to divide total number of values ना. So अगर सिग्नल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं ऐड कर रहा हूँ, that means ये 0 से लेके 2l का, तो this is nothing but lower limit and 2l is upper limit. So this is given in the question. So always कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, the same range. जो लिमिट है हमारा वहाँ से वहाँ तक.